स्टार्ट करें आतिफ? चलें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबीय्यीन। चलें, you all know I am Professor Iqbal Hussain, Udaipur wala. First of all, I am thankful to Dr. Professor Atif for inviting me for this lecture. Mashallah say Atif is doing a very good, tremendous job, and this is the sixth year of crash course for FCPS Part 2 candidates. Definitely, this type of courses are very helpful. Basically, the main objective of this lecture is not to deliver a formal lecture. It's a two-way communication, just to give you the scenario, how you will appear in exam, what mistake you do in exams, and what questions usually the examiners ask during this examination process. Before we start, I want to please introduce yourselves so that we can communicate easily. All are appearing in this exam. Dr. Muslim Bashir from JPMC. Dr. Shahid Hussain from JPMC. Dr. Ejazvi from Dow. Dr. Shahid from Khyber Teaching Hospital, Peshawar. माशाल्लाह से पेशावर से हैं मैं. Dr. Mark from Dr. Faizan from Civil Hospital. Dr. Yusra from Dow Hospital. From? Dow. From Dow. Dr. Hera from Moja. From Moja. चलें, good. Okay, the topic ये आगे कहाँ से होगा? इस अच्छा दूसरा है इसका. Okay. Parapharyngeal tumors or parapharyngeal space tumors. So as I mentioned, this is not a formal lecture. ठीक है? This is Bahria University Medical and Dental College. Before we start, definitely anatomy of the parapharyngeal space is very important, and even examiners can ask you about the anatomy of the parapharyngeal space during your part 2 exam. So, because for surgeon anatomy is always important. So, you all know what is the parapharyngeal space? Parapharyngeal space is an inverted pyramid space which is medially bounded by pharynx and superior constrictor muscles, and laterally by medial pterygoid muscles and the medial surface of the mandible, and posteriorly by prevertebral fascia and vertebra or anterior boundaries में जो है inferiorly at the level of the greater cornea. Anteriorly बताया नहीं क्या? Yes, जो रेफे होता है टेरिगोमेंडुलर रेफे. Okay. Okay. Superiorly base of skull और inferiorly जो है ना greater cornea of eye bone. It's an inverted pyramidal shape, you all know. Apex is pointed downward and the base is upward, that formed by the skull base. ठीक है? Skull base is mainly the temporal bone. Okay. Boundaries, as he already mentioned, the roof is temporal and sphenoid bone, medial pharynx, then laterally mandible and parotid, posteriorly is the vertebral and the prevertebral muscles, anteriorly is the pterygomandibular raphe. How you divide it? Prestyloid and the poststyloid compartment, right? What is the importance of this? The structure that inside the pre-styloid and post-styloid. Contents of the. ठीक है, okay, contents हैं कि prestyloid के कुछ content हैं poststyloid, but what is the importance? Prestyloid में हो, poststyloid में हो. रेडियोलॉजिकली अगर हमें ट्यूमर का जो है ना अगर कैरोटिड जो है ना एंटीरियो
मेडियली प्लेस है तो हम ये असेस करते हैं कि ये ट्यूमर जो है ना पोस्ट स्टेरॉइड कंपार्टमेंट में है। अगर पोस्टीरियर लेटरली डिस्प्लेस हुआ है तो हम कहते हैं कि ये जो है ना ट्यूमर प्री स्टेरॉइड कंपार्टमेंट में है। सर्जिकल एसेस और बेसिकली इसके लिए होता है। Yes. So this is the importance कि why you want to know कि this is क्यों divide किया गया प्री स्टेरॉइड है पोस्ट स्टेरॉइड and why you are interested कि जी प्री स्टेरॉइड के क्या है, because the diagnosis of parapharyngeal tumors is mainly radiological most of the time. Even the first investigation is the radiological investigation. ठीक है, तो that's why it is very important for radiological purpose to know the कंपार्टमेंट, बिकॉज क्यों इस वो है डिफरेंस कि जो कंटेंट हैं प्री स्टेरॉइड और पोस्ट स्टेरॉइड के वो थोड़े से डिफरेंट है। प्री स्टेरॉइड मेनली क्या है, इट्स अ डीप लो फैट है, लिम्फ नोड्स हैं, जबकि बाकी कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर, ऑल फोर लास्ट क्रेनियल, सिंपैथेटिक चेन, लिम्फ नोड्स आर ऑल इन द पोस्ट स्टेरॉइड कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो ट्यूमर्स प्री स्टेरॉइड्स आएंगे वो डेफिनेटली सैलिवरी ग्लैंड्स मेनली होंगे, जो जिसमें प्लूमोफिक एडिनोमा यू ऑल नो इज कॉमन, और जो पोस्ट स्टेरॉइड है उसमें न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स आर कॉमन, और न्यूरोजेनिक में यू नो श्वानोमा है और पैरागैंग्लियोमा, द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट ट्यूमर्स जो हैं वो ये है। अच्छा, इसके अंदर एक हाँ ये भी एक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये प्री स्टेरॉइड और पोस्ट स्टेरॉइड की जो बाउंड्रीज है ये इसके अंदर ख़ास तौर पे एक पैड ऑफ फैट है, उसकी इम्पोर्टेंस है रेडियोलॉजिकली टू नो के जी ये आ रहा है प्री स्टेरॉइड से ट्यूमर या ये इट्स कमिंग फ्रॉम द पोस्ट स्टेरॉइड। क्या होता है उसमें? अगर पोस्टीरियर लेटरली कैरोटिड डिस्प्लेस है तो इसका मतलब है ये प्री स्टेरॉइड का है। सर ये जो पेट वाला भी कंसेप्ट है कि पेट का भी, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। सर ये जो फैट लाइन होती है ये बेसिकली उसी बॉर्डर पे होती है जहाँ डिवाइड होता है प्री स्टेरॉइड पोस्ट स्टेरॉइड। अगर पोस्टीरियर पोस्ट स्टेरॉइड में अगर मैस है तो मैस इफेक्ट की वजह से ये फैट लेयर भी एंटीरियरली पुश होती है, तो उसमें फिर ये फैट लाइन देखी जाती है रेडियोलॉजिकली कि ये एंटीरियरली पुश हो रही है या पोस्टीरियरली, इससे हम डिवाइड करते हैं कि प्री स्टेरॉइड। चलें, ओके, एनीवन एल्स कोई आइडिया? सर स्टेरॉइड में सर पैड पोस्टीरियरली पुश होती है और पोस्ट स्टेरॉइड में से पोस्टीरियर मीडियली और सर पोस्ट स्टेरॉइड में एंटीरियरली। चलें, ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ये। इट्स नॉट के जी अगर प्री स्टेरॉइड है तो फैट दोनों में एंटीरियरली ही पुश होगा, ठीक है, चाहे वो प्री स्टेरॉइड से हो या पोस्ट स्टेरॉइड से, दोनों में फैट, लेकिन जो प्री स्टेरॉइड में होता है वो एंटीरियो मीडियली शिफ्ट होता है और पोस्ट स्टेरॉइड में एंटीरियो लेटरली शिफ्ट होता है। इसकी डायग्राम एक मिनट में देखता हूँ, एक थी तो सही है, आगे आएगी ये है, दिस इज द डायग्राम बेसिकली कि ये इंपॉर्टेंस है कि ये प्री स्टेरॉइड में क्या ये होता है बेसिकली एंटीरियो मीडियली, जबकि ये पोस्ट स्टेरॉइड में ये एंटीरियो लेटरली, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि जी उसमें एंटीरियरली उसमें पोस्टीरियरली, इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, ओके, बैक आ जाएं फिर से वापस से। तो कंटेंट्स हो गए आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे दूं कि पैराफेरिंजियल स्पेस ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं उस पे, और देन विल कम के एग्जाम में किस तरह से आपने आना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम के अंदर अगर पैराफेरिंजियल स्पेस ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग केस में आ सकता है पैराफेरिंजियल, ठीक है। शॉर्ट केस में यूजुअली तो नहीं आएगा, ठीक है, और डिपेंड कि अगर कभी कोई इंटरेस्टिंग केस है तो मे बी शॉर्ट केस में भी आ जाए, लेकिन मेनली जो ज़्यादा चांस है आने के
दैट इज इन द लॉन्ग केस, ठीक है। और टोक्स के अंदर डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स आ सकती हैं, उसके सीटी स्कैन आ सकते हैं, उसका एमआरआई आ सकता है, उसकी एंजियोग्राम्स आ सकते हैं, वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे एक एक, ठीक है, ठीक है। तो मेनली तो पैराफेरिंजियल स्पेस के हवाले से तो यू मस्ट फोकस मोर ऑन लॉन्ग केस, ठीक है। अगर शॉर्ट केस आ भी जाता है तो ज़ाहिर है शॉर्ट केस भी वही सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग केस में, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती हैं वो। तो पैराफेरिंजियल स्पेस ट्यूमर लकीली एक तो ये कि जो चांसेस हैं एग्जाम में आने के वो कम होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी वेरी कॉमन ट्यूमर। हेड एंड नेक में देखा जाए तो लेस देन 1% ऑफ ऑल हेड एंड नेक ट्यूमर आर पैराफेरिंजियल स्पेस ट्यूमर, ठीक है। तो लेकिन ये कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये केस आ जाता है आपके पास पैराफेरिंजियल स्पेस का, तो यू आर लकी कि इसमें जो डिस्कशन है वो काफ़ी है, इसमें एग्जामिनेशन, इसकी हिस्ट्री टेकिंग काफ़ी है, इसमें काफ़ी सारा जो है इसका डिस्कशन जो है जनरेट हो सकता है। तो ये जो मोर चांसेस हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, तो फिर जो चांसेस होते हैं पास होने के वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। जस्ट उसकी ये स्टैटिस्टिक्स हैं ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली इट वेरीज फ्रॉम सीरीज टू सीरीज, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मोस्ट आर 70 to 80% आर बिनाइन एंड 20 to 30% आर मैलिग्नेंट, ठीक है। 3 मेन ट्यूमर्स हैं, 3 मेन ऑर्गन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलिवरी ग्लैंड, देन न्यूरोजेनिक एंड देन लिम्फोरेटिकुलर, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यूज से। तो ये इंपॉर्टेंट है। पैराफेरिंजियल स्पेस ट्यूमर वैसे रेयर है बट इंपॉर्टेंट है। अमंग द सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स, ठीक है, कहाँ से आ सकता है? जो मेन कंपोनेंट है प्रीस्टोलॉइड में इज द डीप लोब ऑफ द पैरोटिड, ठीक है। डीप लोब ऑफ द पैरोटिड में वही ट्यूमर्स हैं जो पैरोटिड के सुपरफिशियल लोब में है, उसकी परसेंटेज भी वही है। तो बिनाइन आर मोर कॉमन, 80% आर बिनाइन। बिनाइन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन है इट्स द प्लेयोमॉर्फिक कैरिडोमा। जो दूसरे बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो उसी फ्रिक्वेंसी में हैं। जो मैलिग्नेंट है इट्स द मोर इसके अंदर ख़ास तौर पे जो पैराफेरिंजियल में कार्सिनोमा एक्स प्लेयोमॉर्फिक, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। एडनॉइड सिस्टिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो मेनली डीप पैरोटिड से आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि लिटिल फेरिंजियल वॉल से भी ट्यूमर अराइज कर सकता है, जो कि एक्सटेंड कर सकता है पैराफेरिंजियल स्पेस में। तो ये भी कुछ केसेस में होता है। और अभी हम जैसे डिस्कस करेंगे, इसकी जो मेन प्रेजेंटेशन होती है वो ओरोफेंजियल मास के थ्रू होती है। बाहर ये बाद में जाके तो आएगा, लेकिन इनिशियली ये ओरोफेंजियल से आता है। तो ये जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट। प्लस इसके अलावा एक्टोपिक सैलिवरी रेस्ट भी होते हैं इस पोटेंशियल स्पेस पैराफेरिंजियल स्पेस के अंदर, तो वो वहाँ से भी इट कैन अराइज, ठीक है। कॉमन जैसे बताया मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा एक्स प्लेयोमॉर्फिक है, एडनॉइड सिस्टिक है। न्यूरोजेनिक ट्यूमर बिकॉज के जो लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स हैं आपकी वो पैराफेरिंजियल स्पेस में हैं, सिंपैथेटिक चेन है, ठीक है। और अब न्यूरोजेनिक ट्यूमर अगेन इट कैन अराइज फ्रॉम द न्यूरो जो उसकी कवरिंग है उससे भी अराइज हो सकता है, विद इन द नर्व भी अराइज हो सकता है, ठीक है। न्यूरोलेमल जो शीथ होती है वहाँ से जो अराइज होता है सबसे कॉमन क्या होता है? इट्स द श्वानोमा। फिर बाकी जो नर्व से अराइज हो सकता है वो न्यूरोफाइब्रोमा है। और पैरागैंग्लियोमा ये कहाँ से अराइज होता है? इट्स अगेन न्यूरोजेनिक ट्यूमर बट नॉट अराइजिंग फ्रॉम द नर्व। ये कहाँ से अराइज हो रहा है? ये जो कैरोटिड बॉडी है वहाँ से, कैरोटिड बॉडी जो न्यूरो एंडोक्राइनल सेल्स है वहाँ से अराइज हो रहा है,
ठीक है। तो पैरागैंग्लियोमा वो है। तो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर श्वेनोमा है, पैरागैंग्लियोमा खासतौर पे वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगेन इसकी परसेंटेज कितनी है, 14 to 41% डिफरेंट सीरीज के हिसाब से। और मैलिग्नेंट के अंदर अगेन मैलिग्नेंट तो सारे रेयर हैं, लेकिन इसके अंदर मैलिग्नेंट में नाम आना चाहिए तो जिसमें मैलिग्नेंट पैरागैंग्लियोमा है, न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा है, श्वेनोसार्कोमा है, ठीक है। कॉमन साइट्स ऑफ न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स ये भी पता होनी चाहिए। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है इज द वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व से अराइज होता है और वेगस के साथ फिर सिंपैथेटिक चेन है और फिर देन हाइपोग्लॉसल है। पैरागैंग्लियोमा में 2% सीक्रेट्स कैटेकोलोमाइंस हैं और 10% पैरागैंग्लियोमास आर मल्टीपल, ठीक है। तो ये जस्ट स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए आपको। लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम ये ट्यूमर्स अगेन द थर्ड इन कैटेगरी है, 10 to 15% ऑफ ऑल पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर है। इट कुड बी प्राइमरी और इट कुड बी सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोमा है और सेकेंडरी में जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन है, प्लस अदर रीजन से भी जा सकती है, ठीक है। जिसके अंदर थायराइड है, ऑस्ट्रोजेनिक कार्सिनोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, तो ये वहाँ से भी सेकेंडरीज आ सकती हैं इसमें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्क्वामस सेल जो कि हेड एंड नेक रीजन से ही आती हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द ट्यूमर्स ऑफ पैराफेंजियल स्पेस, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों के। ये तो सब जस्ट रटाफिकेशन था जो कि आपने बुक से रट लेना है सारा। ओके, तो एज आई मैंशन यू हैव लॉन्ग केस, यू हैव शॉर्ट केस, यू हैव टॉक्स। तो लॉन्ग केस के अंदर पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो हमने ज़्यादा फोकस लॉन्ग केस पे ही रखना है। शॉर्ट केस पे अगर आ जाता है तो फिर वही सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई अलग नहीं है। और टॉक्स के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मैं बताया कि कुछ भी आ सकता है, पेशेंट की पिक्चर आ सकती है, सीटी स्कैन आ सकता है, एमआरआई आ सकता है, एंजियोग्राम आ सकता है, कोई सर्जिकल पिक्चर आ सकती है, ठीक है। तो वॉट एवर फॉर्मेट, ये तो आप लोगों का कल वैसे लेक्चर हो चुका है, सारी डिटेल्स यू ऑल नो, ठीक है। लेकिन जस्ट एक रिकैप करने के लिए कि लॉन्ग केस इज फॉर 1 आवर, ठीक है। यू हैव होल 1 आवर फॉर दैट। 30 minutes, initially 30 minutes are for history taking and the examination, and next 30 minutes are for discussion. Viva है जिसके अंदर 2 एग्जाम्स हैं, 15 मिनट्स ईच एग्जामिनर है। पूछता है एक एग्जामिनर है, मार्किंग दोनों कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये भी कॉन्सेप्ट होता है जी फलां ने मुझसे बड़े मुश्किल सवाल पूछ लिए या उसने बड़े आसान सवाल पूछ लिए, उससे आसान पूछ लिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। मार्किंग दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो मुश्किल है तो वो दूसरे एग्जामिनर को ये भी देख रहा है कि भी ये सवाल मुश्किल है कैंडिडेट के लिए या आसान है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, इसके अंदर मैं हमेशा ये बताता भी हूँ, और ये वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक के, और हमने यही देखा है कि जो इनिशियली कैंडिडेट आता है ना, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैंडिडेट पास होगा या फेल, और वो वैसे ही होता है वो पास फेल में। अगर हिस्ट्री टेकिंग में आपने ज़्यादा लंबा लगा लिया टाइम, 10 मिनट से ज़्यादा अगर हिस्ट्री टेकिंग पे दे दिया ना, फिर आपके पास एग्जामिनेशन के लिए बहुत शॉर्ट टाइम रह जाता है, बिकॉज एग्जामिनेशन इज मोर लेंदी। तो ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये आई एम टेकिंग एग्जाम पार्ट 2, पता नहीं पिछले 20 सालों से शायद, तो इट्स अ वेरी कॉमन कि जो 15-20 मिनट अगर हिस्ट्री टेकिंग कर रहा है ना, तो उसके चांसेस बड़े कम होते हैं, और मोस्टली ये देखा है कि वो पास नहीं होता वो कैंडिडेट। तो टाइम जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री टेकिंग शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स ज़्यादा, 11 मिनट्स कर दें ज़्यादा ज़्यादा, और ज़्यादा 12 मिनट कर लें, बट नॉट मोर देन दैट। तो
वेरी क्विक। और हिस्ट्री में आपको चूंकि ये कैसे आती है, बाय प्रैक्टिस, ठीक है। सवालात तो सबको पता है। अब वो आप सवाल, एक सवाल पूछा जी क्या हो गया, अच्छा, फिर वो उसने जवाब दिया, फिर आप लिखने बैठ गए, फिर आप सोच रहे हैं आप दूसरा सवाल क्या पूछो, फिर दूसरा सवाल पूछा, फिर उसने एक जवाब दिया। बिल्कुल क्विक होना चाहिए, ऐसे जैसे कंप्यूटर खट 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 पूछ रहे हैं ना, आपके फिंगर टिप्स पे वो सवालात होने चाहिए कि ये सवाल आएगा, इसके बाद ये सवाल है, इसके ये सवाल है, इसके ये सवाल है, बिल्कुल रटी हुई चीजें होनी चाहिए। तब वो आप हिस्ट्री टेकिंग जो है ना वो 10 मिनट्स में करेंगे। और ख़ास तौर पे पैरेंजियल स्पेस में तो बहुत हिस्ट्री टेकिंग है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट केस चलें, ये थोड़ा सा इसको वैसे बता दें। शॉर्ट केस में वैसे कल तो हो चुका है, ड्यूरेशन 10 मिनट्स हैं। इसमें 4 केसेस होते हैं, ऑटोलॉजी, राइनोलॉजी, ओरल कैविटी और हेड एंड नेक के। एग्जामिनेशन के अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स होते हैं और डिस्कशन के 7 मिनट्स होते हैं, ठीक है। टॉक्स तो यू ऑल नो कि क्या है कि एक कोई भी पिक्चर होती है उसके हवाले से कोई 5-6 सवाल होते हैं, वो दैट यू हैव टू आंसर दैट। चलें अब आ जाते हैं फिर इम्पोर्टेंट हमारे अपने टॉपिक पे, हिस्ट्री। ये पूरे का पूरा समझ लेंगे लॉन्ग केस का आपका टेम्पलेट है जिस पे आपका पूरा एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसी पे मार्किंग होती है, इसी तरह से ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपके मार्क होते हैं, ठीक है। सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट कंप्लीट हिस्ट्री, एज आई मेंशन, नॉट मोर देन 10 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देनी, लेकिन हिस्ट्री शुड बी कंप्लीट। ये नहीं कि 10 मिनट में आपने पूछा तो बस 2-4 सवाल पूछ लिए, पूछनी तो हमने पूरी है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जैसे अभी पैराफेंजियल स्पेस की अभी हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री टेकिंग में इतने चीज़ें, इतने सिस्टम को कवर करना है, इतने सिम्टम्स उसके अलग अलग हो सकते हैं, वो आपने इंडिविजुअली सारे एक एक पूछने हैं। तो जब तक वो बिल्कुल आपके माइंड में पहले से नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क दिस विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में ऑलवेज ये जो MBBS 3rd लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, जो हिस्ट्री टेकिंग, वो आपके माइंड में वही फॉलो करनी है आपने, आगे पीछे नहीं होनी है। आगे पीछे होता है फिर क्या होता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। ये नहीं इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है, पता सबको होता है, ज़ाहिर इस लेवल पे हर एक को हिस्ट्री टेकिंग पता है कि जी क्या इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, किस तरह से रेलिवेंट हिस्ट्री लेनी है। लेकिन उस टाइम पे आपको आना है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर। जब तक ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे ना तो फिर चीज़ें भूलेंगे। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बैड डेटा, ठीक है। पेशेंट, ये बड़ा कॉमन है कि पूरी हिस्ट्री ले ली, आखिर में पेशेंट का जी पूछा, जी हाँ बताएं नाम क्या है, और नाम पूछना भूल गए, एज पूछना भूल गए, ऑक्यूपेशन पूछना भूल गए, ठीक है। सो तो ये जो चीज़ें हैं ये उसी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो बायोडाटा है, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का वही जो 3rd ईयर से आप सुनते आ रहे हैं कि जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और जितनी है वो कंप्लेंट है, उसकी ड्यूरेशन है, वो आपने उसी तरह से पूछनी है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में अगेन पूरी वही पैटर्न आपने फॉलो करना है, ठीक है। कि कब से स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन क्या है, इसका ऑनसेट कैसे था, इसकी प्रोग्रेशन कैसी है, इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या है, इसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं, फिर इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर पेन है, स्वेलिंग है तो किस तरह की है स्वेलिंग, ठीक है। वो सारे सवालात जो आप यू ऑल नो पूछने हैं आपने। फिर एसोसिएटेड जितनी कंप्लेंट है हर एक की उसकी सारी चीज़ें आपने पूछनी है। फिर पास्ट हिस्ट्री, देन पर्सनल हिस्ट्री, फिर फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एवरीथिंग शुड बी आस्क्ड, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पैराफेंजियल स्पेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो आपके जो मिस आपने नहीं करने पॉइंट्स, ठीक है।
सबसे पहले तो डेफिनेटली पेशेंट आएगा या तो वो नेक मास के कंप्लेंट से आएगा या ओरोफेंजल मास की कंप्लेंट से आएगा। तो आपने पूरी जो स्वेलिंग है उसकी हिस्ट्री उस लेनी है पूरी कंप्लीट। फिर स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन स्पेशली पूछना है आपने, ईयर के हवाले से उसकी हिस्ट्री जो है वो लेनी है। डिस्फेजिया कब इंपॉर्टेंट होता है? ओरोफेंजल कंप्रेशन है या फिर नर्व की स्पेशली द वेगस की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट है डिस्फेजिया। डिस्निया कब इंपॉर्टेंट है? ओरोफेंजल एक तो मास इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, प्लस अगेन बिकॉज ऑफ द वेगस, ठीक है। अगर वोकल कॉर्ड पैल्सी हो रही है उसकी वजह से है तो वो आपने पूछा है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हिस्ट्री है। क्रेनियल नर्व की हिस्ट्री, क्रेनियल नर्व स्पेशली एक एक क्रेनियल नर्व की आपने के हवाले से जो उसकी डेफिसिट के हवाले से सवालात जरूर पूछने हैं, ठीक है। फिर हॉर्नर सिंड्रोम अगर सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्व है तो उसके हवाले से सिम पेन है। फिर पेन वैसे तो जाहिर नहीं होता है, बिनाइन कंडीशन पेनलेस। टोसिस की हिस्ट्री है नहीं है, आँख खुलने में बंद है, देखने में मुश्किल है, विजुअल का उसका कोई मसला है, ठीक है। एनिड्रोसिस है यानी स्वेटिंग, ऐसा तो नहीं पसीना नहीं आ रहा है फेस पे, और तो ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिस्मस की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेरिगॉइड मसल्स की इन्वॉल्वमेंट या फिर पैरागैंग्लियोमा में हिस्ट्री टेकिंग में सिम्टम्स ऑफ कैटेकोलामाइंस, ठीक है। हाइपरटेंशन है, फ्लशिंग है, ठीक है। ये सारी जो हिस्ट्रीज हैं ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये पूछनी है इसमें। तो ये सारी चीजें आपने मिस नहीं करनी है इसमें, ठीक है। देन कम्स द थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हाँ हाँ भाई साहब, important call this. Okay, so what we were discussing, clinical examination. Again, clinical examination में इसमें
इतना वाइड चीज़ें हैं जो कि आपने सारी कवर करनी है, ठीक है। और वैसे तो ज़ाहिर है लॉन्ग केस के अंदर आपने हर केस में ही कंप्लीट एग्जामिनेशन करना होता है, सारे सिस्टम्स वैसे भी करने होते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर पैराफेंजियल स्पेस तो आपने हर सिस्टम बिकॉज इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो एग्जामिनेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो जाहिर है जो मेन कंप्लेंट है वो तो नेक स्वेलिंग है, तो नेक स्वेलिंग का कंप्लीट एग्जामिनेशन। अगेन ये जो एग्जामिनेशन पे जब जाते ना तो डोंट जंप डायरेक्टली ऑन इट। जो एग्जामिनेशन का भी तरीका है सिस्टमेटिक वे कि भाई पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, वाइटल साइन चेक करने हैं, ये कर उसी सीक्वेंस में करें, वरना ये क्या होता है कि जब आप बाकी चीज़ें कर लेते हैं इसमें भूल जाते हैं, ठीक है। बड़ा कॉमन है कि वाइटल साइन चेक ही नहीं किए पेशेंट के, वाइटल्स एंड सब वाइटल्स, ठीक है। सर अच्छा कुछ एग्जाम में कहते हैं कि टाइम कम होता है तो आप आखिर में लिया करें या पहले, तो आप क्या अच्छा prefer करते हैं? देखो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आई सजेस्ट के जी आप उसको ऑर्डर को फॉलो करें, तब आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, वरना हैपैजर्डली क्या करेंगे कि अक्सर कैंडिडेट ये करते हैं कि टाइम बचाने के लिए कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो पहले करते हैं और जो लेस इम्पोर्टेंट है वो आखिर के लिए छोड़ देते हैं। होता ये है कि आखिर में टाइम नहीं बचता और वो जो लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें ना वो छूट जाती हैं। तो लॉन्ग केस के हवाले से ये समझ लें कि कोई भी चीज़ लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, करनी तो है ना, तो इट्स बेटर के टू फॉलो ऑर्डर ताकि आप चीज़ें भूले ना, ठीक है। तो ऑलवेज जाहिर है कि मेन कंप्लेंट तो नेक स्वेलिंग के साथ आया है ना, अब आप उसको पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आखिर में भूल जाएंगे वरना उसके, ठीक है। एनीमिया चेक नहीं किया आपने, इंपॉर्टेंट है ना, पल्स चेक नहीं की, बीपी चेक नहीं किया है, ठीक है। पेशेंट फीवर की हिस्ट्री दे रहा है और आपने टेम्परेचर चेक ही नहीं किया, तो दैट शोज के मतलब है कि आपने बेसिक चीज़ें फॉलो नहीं की हैं। तो बेसिक चीज़ें जो है ना फॉलो करनी है तो सिस्टमेटिक वे में जाए, ठीक है। तो अगेन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कर लिया, वाइटल्स कर लिए, फिर उसके बाद आप सिस्टम भी आप यू कैन मेक योर ओन ऑर्डर कि जी मैं किस ऑर्डर में करूँगा। मकसद ये है कि चीज़ें भूले ना, ठीक है। स्वेलिंग में आप अगेन जो थर्ड ईयर से समझाते आ रहे हैं कि जी एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग में पहले इंस्पेक्शन करनी है, फिर पैल्पेशन करनी है, फिर परकशन करनी है, फिर ऑस्कल्टेशन करनी है, तो यही ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है। उसी तरह से आपने फॉलो करें सारी चीज़ें, लेकिन क्विक होना चाहिए। सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में आप जितनी चीज़ें सारी आपने एग्जामिन करनी है ये, ठीक है, नॉट गोइंग टू डिटेल। फिर आपने पैल्पेशन है, पैल्पेशन पे भी आपने ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग की होती है पैल्पेशन की वो आपने फॉलो करनी है कंप्लीट, ठीक है। साइड, साइज, शेप, सरफेस, मार्जिन, टेंडरनेस, टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी, फ्लक्चुएशन, रिड्यूसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, फिर मोबिलिटी ऑफ अ लैंग स्किन, ट्रांसलेमिनेशन, भूलनी नहीं है इसमें से कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो नहीं देखो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने करना जरूर है, ठीक है। नेगेटिव होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कर लें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली उसमें नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन करने में तो हद है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हाँ भाई आपको ये चीज़ पता है, आपने की, उसको फॉलो तो किया है ना उसको। ऑस्कल्टेशन फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे वेस्कुलर ट्यूमर के हवाले से। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जामिनेशन जो ज़रूर आपने पैराफेंजल के हवाले से करने हैं, तो ओरोफेंजल एग्जामिनेशन डेफिनेटली नेक स्वेलिंग के था थ्रू आया है, तो ओरोफेरिंग्स में भी बल्जिंग हो सकती है। फिर पैरोटिड ग्लैंड का जो कंप्लीट एग्जामिनेशन है वो साथ में आपने करना है, ठीक है, जिसमें ख़ास तौर पे ये जो प्रेस करके अंदर उसकी
डेवलपमेंट जो चेक करते हैं वो आपने ज़रूर देखनी है कि डीप लोब है तो डीप लोब में वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा पैरोटिड ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स, वैसे तो ज़ाहिर है हर लॉन्ग केस में आपने सारी क्रेनियल नर्व्स करनी है, लेकिन स्पेशली यहाँ तो क्रेनियल नर्व्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्रेनियल नर्व्स की ईच एंड एवरी क्रेनियल नर्व इनडायरेक्ट लैंग्योस्कोपी डेफिनेटली करनी है, ताकि आपको वेगस की कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई पैरालिसिस है, पोस्टीरियर लैंग्योस्कोपी, एग्जामिनेशन ईयर का वो भी कंप्लीट। समटाइम जो ना ये ओरोपेरिक्स बल जितना ज़्यादा होता है कि अराउंड 75% ऑफ ओरोपेरिक्स की ल्यूमन को उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द पोस्टीरियर लैंग्योस्कोपी एंड आइडियल। तो इस कंडीशन में हम क्या पेशेंट को से एग्जामिनर को बता दें कि आई वांट टू डू दिस, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ डेफिनेटली इट विल बी ए पेनफुल और नॉट पॉसिबल होगा। अगर एग्जामिनर कहता है नहीं फिर भी करें, तब कर लें, और अगर नज़र आता है अच्छी बात है, नज़र नहीं आता है तभी बताएं कि बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इट्स नॉट विजिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है एग्जाम करना। ओरोफेरिंक्स ट्यूमर आपको नोज तक या पोस्टीरियर नेजल स्पेस तक ज़्यादा नजर आता है, तो सर उसमें भी हमको पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करें? देखिए यही मैं समझा रहा हूँ ना कि दैट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है, लेकिन आपने ये शो करना है एग्जामिनर को, आपको ये चीज़ पता है, आप ये चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे तो उनको बोल देंगे जी मैं पोस्टीरियर लैंग्योस्कोपी करना चाहता हूँ लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, इनडायरेक्ट लैंग्योस्कोपी करना चाह रहा हूँ लेकिन डिफिकल्ट होगी या नहीं पॉसिबल होगी, व्हाटएवर, ठीक है। सर अगर ओरोफेरेंजियल बल्ज हमें मिल रहा है टिश्यू ऑफ पैराफेरेंजियल स्पेस ट्यूमर, तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो अहम है बताने चाहिए? वही जो स्वेलिंग के जो होते हैं कि भाई इंस्पेक्शन पे जा रहे, पल्पेशन और परकशन और ऑस्कल्टेशन तो नहीं होगी, वो तो सिर्फ आप इंस्पेक्शन पे ही करोगे। तो इंस्पेक्शन पे जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी साइज है, उसकी मार्जिन्स हैं, उसकी सरफेस है, हर चीज़ है जो स्वेलिंग का डिस्क्रिप्शन होती है, उसी तरह से आपने डिस्क्रिप्शन देनी है ओरोफेरेंजियल मास की भी, ठीक है। हमें जो आप ऑस्कल्टेट करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि आप पीछे बैक साइड ऑफ द स्टेथोस्कोप से बुरी वाले एरिया से करें, वहीं से करनी है Yes. और हाथ तो उसके ऊपर रख के जैसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस, ठीक है। ये दो जब आपके 30 मिनट्स गुजर गए, ठीक है, आपने हिस्ट्री ले ली, आपने एग्जामिनेशन कर दिया, अब देन बेल बजती है और पहला जो कमेंट या जो कमांड होता है या टास्क होता है वो प्रेजेंट योर केस, ठीक है। अब प्रेजेंट योर केस में अगेन आप की प्रेजेंटेशन, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अब आपने बोलना शुरू किया, पहला ही जो आप जुमला बोलते हैं तो उसी से आपका अंदाजा हो जाता है कि जी आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशन है अगेन शुड बी वेरी क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूरी बतानी है। आपने अगेन बायोडाटा से शुरू करना है कि भाई माई पेशेंट नेम इज दिस, ऑफ दिस एज एंड बाय ऑक्यूपेशन दिस, ये जो भी है, केम विथ टू मी विद द कंप्लेंट ऑफ दिस 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 फॉर दिस टाइम, फिर उसकी आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फिर सारी चीज़ें उसी तरह से बतानी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसमें भी टाइम ज़ाया ना करें, अगेन इट्स योर इंटेलिजेंस कि आप उस वक्त पे वो क्या चीज़ें किस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ कैसे आती है, प्रेजेंटेशन से ही आती है कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हो डिफरेंट, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाए जी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं बतानी होती है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर खुद भी आपको गाइड कर देता है कि जी जस्ट गिव मी द पॉजिटिव फाइंडिंग, या हिस्ट्री को अगर है वो कह देता है शॉर्ट कर लें, चलें जी पॉजिटिव, इसलिए कि वो जब आप ले रहे थे तो वो तो सुन चुका है ना एग्जामिनर, दोनों एग्जामिनर सुन चुके हैं, तो वो आपको कह देता है कि जी ठीक है ये इसको छोड़ दें, ये चीज़ें हो गई हैं, आपने कवर कर ली हैं, ही नोज के ये हो गया, ठीक है। तो वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट।
फिर प्रेजेंटेशन में आपने उसी तरह से एग्जामिनेशन भी अगर शुरू करने तो एग्जामिनेशन में भी कोशिश करें कि भाई हमेशा सिस्टमेटिक एग्जाम से शुरू करके उसके जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो सारी बताएं, फिर एसोसिएटेड जितनी फाइंडिंग्स हैं सब फाइंडिंग्स को उसी तरह से आपने डिटेल में बतानी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपका आ जाता है दो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का होता है कि नाउ व्हाट इज योर क्लिनिकल इंप्रेशन, व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस या व्हाट इज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस। कि अब आपने हिस्ट्री भी ले ली, आपने एग्जामिनेशन भी कर लिया, नाउ व्हाट डू यू थिंक कि पेशेंट को क्या है। ठीक है। तो ये आपके ये जो सवाल होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस को शो कर रहा होता है कि जी आप अच्छा। इसके अंदर फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बड़ा कॉमन देखा है कि जो पेशेंट पहले से देखे हुए होते हैं ना, या आप उसको डायग्नोसिस आपका पता होता है, तो योर माइंड ऑलवेज गो ठीक है। कोई ऐसी रेयर डिजीज है आपके मुंह से सबसे पहले वो रेयर डिजीज निकलती है, तो भाई क्यों रेयर डिजीज आपने पहले सोची, इसलिए कि डायग्नोसिस आपको पहले से पता था इसका। ऑलवेज थिंक ऑफ कॉमन डिजीजेस फर्स्ट, कॉमन चीजें फर्स्ट होनी है ना। ठीक है। पैराफेंजियल में तो सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन है प्रोमोर्फिक एडिनोमा, तो प्रोमोर्फिक एडिनोमा ही आना चाहिए। अब आपने कोई रेयर जी कह दिया जी दिस इज अ केस ऑफ मैलिग्नेंट पैरागैंग्लियोमा, तो मैलिग्नेंट पैरागैंग्लियोमा तो इतना रेयर, तो आपने सिर्फ कैसे विदाउट ये, या आपने जो अपना प्रोविजनल डायग्नोसिस उसके अंदर ही पहला फर्स्ट पे वो डाल दिया, तो एक रेयर डिजीज को फर्स्ट नंबर पे क्यों डाल दिया। ठीक है। तो ये बड़े ट्रिकी सवाल होते हैं, तो इसका जवाब भी आपने जो है ना उसको देना है ट्रिकी। जो चीजें आपने हिस्ट्री में देखी, आपने कोशिश तो ये करे कि यार ये जो पेशेंट पहले से देखे हुए होते हैं ना ये ना करें, इसलिए कि ये हमेशा फायदा देने के बजाय नुकसान देते हैं ये, इसलिए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो ब्लॉक हो जाता है, आप उसके आगे सोचते ही नहीं है। अब आपके डायग्नोसिस आ गया, बस आप वो उसी एक लाइन पे लिटरली आप सोचते ही नहीं है। और वो नेक्स्ट सवाल यही आ रहा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है ना वो डायग्नोसिस तो ऐसा एक्यूरेट पिन पॉइंट बता दिया, अब उसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे पूछा है तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर अटक गया जी। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या बताएं, उसका रीजन यही होता है कि वो जो थॉट प्रोसेस है वो ब्लॉक हो गया है। ठीक है। तो ऑलवेज जो आपने हिस्ट्री ली है, आप एक चीज सोचें कि भाई हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में ये मुझे फाइंडिंग मिली है, अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, उन पॉसिबिलिटीज की एक लिस्ट बनाएं, और उसमें जो सबसे पहली चीज जो मोस्ट प्रोबेबल है वो आप पहले बता दें। डेफिनेटली पैराफेंजियल स्पेस, अगर ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं तो पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर में कि आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर दिया, तो एटलीस्ट यू नो कि दिस इज अ पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर। ठीक है ना, इतना तो बता देंगे ना। अब पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर है, ये प्रेजेंट कर रहा है नेक स्वेलिंग के साथ और प्लस माइनस ओरोफेंजियल उसके साथ कर रहा है। जब ये कर लिया आपने, तो अब जो डायग्नोसिस जो पहला तो है क्लिनिकल डायग्नोसिस इज द पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर। ठीक है। ज़ाहिर हिस्ट्री अगर प्रोलॉन्ग है तो वो आपने उसके हिसाब से ट्यूमर को ही डायग्नोस करेंगे। फिर अगर अब आप सोचेंगे कि जी अगेन कि अब इसके लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है, अगेन दो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे जो सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस बनाए। अगर सलेवरी ग्लैंड है तो भाई सलेवरी ग्लैंड के हिसाब से बोलेंगे जी इट लुक्स लाइक ए सलेवरी ग्लैंड। ठीक है। या अगर नर्व के हवाले से और नर्व की कोई फाइंडिंग्स मिल रही हैं, ठीक है, नर्व पैरालिसिस है वॉट एवर, तो फिर आप नर्व के हवाले से कहेंगे कि प्रोबेबली के ये हो सकता है। ठीक है। तो ऑलवेज मेक योर डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। इसलिए कि अभी आपने इन्वेस्टिगेशन तो करा ही नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन तो अभी नेक्स्ट आएंगी, तो अभी तक आपने सिर्फ अपनी
ये चीज़ फिर ये बतानी है। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस का नेक्स्ट सवाल यही होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और मैनी कैंडिडेट जो है ना यहाँ पे स्टक हो जाते हैं जी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके अंदर क्या हो सकता है, पैराफेरेंजियल स्पेस में ये तो आपने डायग्नोस बना दिया जी, पैराफेरेंजियल स्पेस ट्यूमर है। अब ट्यूमर में सबसे जो लाइकली पॉसिबिलिटी आपने कहा जी सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड में प्लोमॉर्फिक एडिनोमा हो सकता है। प्लोमॉर्फिक एडिनोमा के अलावा जो नहीं, प्लोमॉर्फिक एडिनोमा में भी तो सैलिवरी ग्लैंड चूंकि सबसे कॉमन है, तो अब सैलिवरी ग्लैंड के दूसरे ट्यूमर्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है, मोनोमॉर्फिक भी हो सकता है, वार्थिंस ट्यूमर्स भी हो सकता है, ठीक है। मैलिग्नेंट के अंदर जो है वो अगर इफ यू हैव द फीलिंग के जी ये मैलिग्नेंट है, ठीक है, हार्ड है, फिक्स है, सडन ग्रोथ की हिस्ट्री है, पेन की हिस्ट्री है, वॉट एवर सजेस्टिव कि जी मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री है, तो फिर आपने मैलिग्नेंसी के हवाले से उसके फिर नर्व की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो फिर आपने नर्व न्यूरोजेनिक के हिसाब से उसके डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्ज करो पैरागैंग्लियोमा है और उसके साथ कोई कैटेकोलामाइंस की सिक्रीशंस के कोई साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तब आप वो बता सकते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, देखिए ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं हिस्ट्री में, ये चीज़ें एग्जामिनेशन में मिल रही हैं, ठीक है। देन कम्स इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अब ये जब सारी चीज़ें हो गई, आपने डिफरेंशियल भी बता दिए, तो अब नेक्स्ट सवाल आपका होता है कि नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रोसीड नाउ, ठीक है। तो अब आ गया इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अगेन इन्वेस्टिगेशन में इट ऑलवेज जो आपकी है, ये नहीं कि आपने जी आएंगे जी मैं ब्लड सीपी कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, अभी तो डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं ना, तो बी स्पेसिफिक, ठीक है। पेशेंट को जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, आपके पास आ रहा है क्लिनिक पे और जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ऑलवेज गो लाइक दिस कि भाई पहला तो आपने डायग्नोसिस करना है ना, अभी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन तो कराएंगे, वो तो बात की बात है, बेसलाइन तो आपने जब सर्जरी प्लान करनी है तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, एज आई मेंशन कि पैराफेरेंजियल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज द रेडियोलॉजिकल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजी इवन बिफोर बायोप्सी, और ये भी है कि बायोप्सी या एफएनएसी, यू विल नॉट डू बायोप्सी एंड एफएनएसी until and unless you have done the radiological investigation and you have made a diagnosis, फिर उसके बाद इसकी बारी आती है। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही सबसे पहले है, और उसके अंदर अगेन दो ऑप्शंस हैं, यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ सीटी स्कैन और यू हैव द ऑप्शन ऑफ एमआरआई, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या होगा, यही पूछेगा जी क्या कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे, एमआरआई कराओगे, क्या कराओगे, सीटी स्कैन या एमआरआई? एमआरआई, एमआरआई, एमआरआई विद, हाँ मैम जी, आई विल गो, चलें एक सीटी स्कैन है, बाकी कितने 4 और 7 जो है वो एमआरआई। तो अगेन अब इसकी जो बात है कि सीटी स्कैन वर्सेस एमआरआई क्या कराएंगे, तो सबसे पहले तो जो एज फार एज द पैराफेरेंजियल स्पेसर ट्यूमर, ये सोच ले कि बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, ठीक है। कुछ फायदे सीटी स्कैन के हैं, कुछ फायदे एमआरआई के हैं, एंड सेकेंड थिंग इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैनी अ टाइम्स यू नीड बोथ, ठीक है, एमआरआई भी सीटी स्कैन भी, बोथ। अब कुछ चीजें हैं जो सीटी स्कैन के लिए फायदेमंद है, कुछ चीजें हैं जो एमआरआई के लिए फायदेमंद है। सीटी स्कैन का सबसे पहला फायदा इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एमआरआई महंगा है हर जगह, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, वो तो पेशेंट कह रहे थे मैं तो करा ही नहीं सक रहा है एमआरआई, ठीक है। तो सीटी स्कैन हर जगह अवेलेबल है, एमआरआई अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये,
फिर सीटी स्कैन कैन लोकलाइज द कंपार्टमेंट, ये एमआरआई भी कर देगा कंपार्टमेंट के जी प्रीस्टिलॉइड्स है पोस्टिलॉइड्स है, वो बता देगा आपको। ओरिजिन ऑफ द मास दोनों बता देंगे, सीटी स्कैन भी बता देगा, एमआरआई भी बता देगा। मैलिग्नेंसी में स्पेशली विथ सम कैल्सिफिकेशन या बोनी इन्वॉल्वमेंट, तो सीटी स्कैन इज ऑलवेज बेटर देन एमआरआई। ये इंफॉर्मेशन आपको एमआरआई नहीं देगा, ठीक है। तो अगर इफ यू आर सस्पेक्टिंग सम मैलिग्नेंसी तो फिर दोनों जरूरी है, लेकिन इवन फर्स्ट यू विल गो फॉर द सीटी स्कैन फर्स्ट। सीटी स्कैन वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा एमआरआई से, ठीक है। अच्छा, फिर वेस्कुलर ट्यूमर में कंट्रास्ट एनहांसमेंट सीटी स्कैन आपको बता देगा। अच्छा, बट सीटी स्कैन इज लेस इन डिलिनेटिंग सॉफ्ट टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए डेफिनेटली एमआरआई इज बेटर, जो कि टिश्यू डिफरेंशिएशन कि जी ट्यूमर का नेचर कैसी है, सॉफ्ट टिश्यू कैसा है, क्या है, वो एमआरआई गिव्स बेटर देन द सीटी स्कैन। तो ये यहाँ पे एमआरआई इज बेटर। प्लस सीटी स्कैन की डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है कि जी रेडिएशन एक्सपोजर है, प्लस कंट्रास्ट विथ करा रहे हैं तो कंट्रास्ट है। अगर वो फर्स्ट कर लो कि जी रीनल फंक्शन ही उसके ठीक नहीं है तो कंट्रास्ट देना मुश्किल हो जाएगा। ये तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। एमआरआई डेफिनेटली कॉस्टली है, लेकिन क्या है, बेटर सॉफ्ट टिश्यू डिलिनेशन, सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल्स आपको ज्यादा बेटर एमआरआई बताएगा। प्लस इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्यूमर और मसल्स के दरमियान डिफरेंशिएशन, जो कि सीटी स्कैन के अंदर डिफिकल्ट होती है बताना। प्लस ग्रेट वेसल्स और ट्यूमर का रिलेशनशिप एग्जैक्ट ज्यादा एमआरआई विल गिव यू बेटर, ठीक है, देन द सीटी स्कैन। फिर इसी तरह से एमआरआई इज बेटर फॉर श्वेनोमा एंड पैरागैंग्लियोमा, कि अगर सस्पिशन है, बोनी इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए डेफिनेटली ये पुअर है। और फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है कुछ पेशेंट एमआरआई की, लाइक पेसमेकर लगा हुआ है, पेसमेकर लगा हुआ है, और अनस्टेबल पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन। हाँ, बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं एमआरआई की, तो ये हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजी में जैसे हमने बताया था कि ये तो हमने बता दिया कि बायोप्सी से पहले कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ रेडियोलॉजी आपके पास ये सवालों के जवाब आ जाने चाहिए कि इज द मास प्रीस्टिलॉइड या पोस्टिलॉइड, रिलेशनशिप टू द पैरोटिड ग्लैंड, रिलेशनशिप टू द ग्रेट वेसल्स, एंड व्हाट आर द सॉफ्ट टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने करनी है। ओके, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस पिक्चर को। चलें, ये डिफरेंस हो गया। अगेन देखिए, बताया ना कि इट वेरीज, आपने एक ही जवाब नहीं देना कि जी सीटी स्कैन ही कराएंगे या एमआरआई कराएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन, कि आपके माइंड में पहला डायग्नोसिस है क्या, ठीक है। अगर मैलिग्नेंसी फर्स्ट करो सस्पिशन है तो, और जैसे ये पहले ही बता दिया ना कि ये तो एक तो इक्वली इफेक्टिव है, प्लस इट्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और मैनी एट टाइम्स यू नीड बोथ। पहले सीटी स्कैन जब आप करा लेते हो तो कुछ सवालों के जवाब मिल गए, कुछ के नहीं मिले, तो देन यू विल गो फॉर एमआरआई। चूंकि सीटी स्कैन इज लेस कॉस्टली, कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एमआरआई, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस सीटी स्कैन फर्स्ट एंड देन एमआरआई, ठीक है। ओके, एंजियोग्राफी कोई इंपॉर्टेंस? वेस्कुलर ट्यूमर है, उसके अंदर एंजियोग्राफी की इंपॉर्टेंस है, और फीडिंग वेसल्स की है। चलें, ओके। तो फिर दूसरा ये कि खास तौर पे इन पोस्ट सिस्टुलर रीजन टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन विद द ग्रेट वेसल्स, ये भी बाज़ दफ़ा यू वांट टू नो, तो उसके लिए एंजियोग्राफी की एक इंडिकेशन बन सकती है
कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में खासतौर पे ये जो लायर साइन है, ये आपको पता ही है, Displaying of the सबको पता है। Separation of the Displaying internal of and external the- carotid from each other by the tumor. ट्यूमर क्या हो जाता है? वो लायर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना पुराने यस, पुराना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लायर इस तरह से वो बन जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लायर साइन। फिर ग्लोमस वेगेल है तो उसके अंदर एंजियोग्राफी है। श्वेनोमा जो है ना, वैसे इसके अंदर ये ए वेस्कुलर होते हैं, CT angiogram बोल सकते ये अब आ गया ना। नाउ द रिसेंट इज सिटी एंजियोग्राफी एंड द MR एंजियोग्राफी, ठीक है। तो अब एंजियोग्राफी डायरेक्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट की जगह ज़्यादा MR, अगर इफ़ यू हैव द फैसिलिटी तो फिर आपने ये दो चीज़ें यू कैन गो फॉर इट, सिटी एंजियोग्राम एंड MR एंजियोग्राम, ठीक है। तो ये डेफिनेटली, और रिसेंट एडवांसेस के अंदर भी अगर वो सवाल एक आएगा तो उसके अंदर आप ये बोल सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का कोई रोल है एज सच? हैं। अगर इन्फेक्टिव कोई इशू लग रहा है, इन्फेक्टिव, तो शायद हम इसके रिलेशन वगैरह और वो बाकी बोनी इन्वॉल्वमेंट कुछ पता नहीं चलता। तो इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, मतलब चॉइस इज नॉट अ गुड इन्वेस्टिगेशन फॉर पैराफेंजियल, ठीक है। कुछ लेके कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती नहीं है। वैसे नेक मास के अंदर अगर दूसरा कोई नेक मास है तो डेफिनेटली अल्ट्रासोनोग्राफी विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, लेकिन पैराफेन अगर प्रेजेंटेशन में ऐसे कि सिर्फ एक छोटा सा लोब्यूलर मास यहाँ से आपको आ रहा है, तो भी हम अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते? करा सकते हैं। करा सकते तब तो फिर आप पैराफेंजियल सोचेंगे ही नहीं ना, फिर तो आप कुछ और सोचेंगे, तो फिर तो अल्ट्रासोनोग्राफी। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ पैराफेंजियल तो फिर उसके अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं की रोल कम है, सिटी स्कैन और MRI का रोल है ज़्यादा, ठीक है। रोल ऑफ बायोप्सी एंड FNAC क्या है? ये पहले ही बता दिया कि इट्स ऑलवेज डन आफ्टर लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड व्हेन यू हैव अ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस। जब हो जाएगा उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो आपने FNAC या बायोप्सी कराएंगे। ओपन बायोप्सी का तो सबसे पहला है, अगर इफ यू आर सस्पेक्टिंग लिम्फोमा, ठीक है, डेफिनेटली उसमें तो ओपन बायोप्सी करनी है। क्यों करनी है ओपन बायोप्सी? क्योंकि कैप्सूल जब नहीं होता है तो लिम्फोमा डायग्नोसिस नहीं बनता है, उसके लिए कैप्सूल का ट्यूमर का कैप्सूल होना मैंडेटरी। एक्ससिजनल भी कह सकते हैं। बिकॉज स्टेजिंग अगर लिम्फोमा की करनी है तो यू नीड आर्किटेक्चर, उसकी पूरी हिस्टोपैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वहाँ पे FNAC इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इवन अगर FNAC पे लिम्फोमा आता है तब भी यू विल गो फॉर द बायोप्सी, ठीक है। अच्छा, FNAC कब करेंगे? व्हेन द मास इज रेडिली एसेसिबल और इफ मैलिग्नेंसी इज सस्पेक्टेड, ठीक है। और व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसओरल FNAC? करा सकते हैं? Risk of direct injury to the neurovascular structure. ट्रांसओरल में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ब्लीडिंग हो सकता है तो पेशेंट की एक्सपायरेशन के चांसेस होते हैं, सो इट इज बेटर टू डू द अंडर जनरल एनेस्थीसिया विद इंसिजनल बायोप्सी रेदर देन द FNAC इन केस ऑफ न्यूरोपेनिया। इंसिशनल बायोप्सी ट्रांसओरली? नहीं ट्रांसओरल अंदर GA करें सर, नहीं, ट्रांसओरली या ट्रांस, नहीं ट्रांसओरल करें, एक्सटर्नल अप्रोच नहीं करें। अच्छा ट्रांसओरल बिल्कुल FNAC का रोल डेफिनेटली है, स्पेशली व्हेन कि जब नेक में प्रेजेंटेशन नहीं है, एज अ ओरोफेंजियल मास प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि माइनर सैलिवरी ग्लैंड है, वो मेनली तो ओरोफेंजियल मास के थ्रू आ रहे हैं, तो वो तो वहाँ से एसेसिबल है, ठीक है। डेंजर क्या है? इट्स बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर, आपने कितना डीप जाना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप कर नहीं सकते, तो ग्रेट वेसल की इंजरी इज द मेन डेंजर, ठीक है। लेकिन अगर पूरा का पूरा मास बल्ज करके आ रहा है तो इट्स वेरी इजी कि यू कैन डू ट्रांसओरल FNAC, ठीक है। अदर टेस्ट कोई और कराएंगे? अब आपने सिटी स्कैन भी करा लिया, MRI भी करा लिया, ठीक है। अब नाउ यू हैव द डायग्नोसिस पूरा डेफिनेटली। अब कुछ यू नीड सम अदर टेस्ट प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को, तो डेफिनेटली जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं प्लस अदर सिस्टम की आपने करानी, GLFTs कराने, रीनल फंक्शन टेस्ट कराने हैं, वो सब चीज़ें तो कराएंगे ही, ठीक है। कुछ टेस्ट हैं जो कि स्पेसिफिक
अगर आपका डायग्नोसिस है तो यू नीड सम अदर इन्वेस्टिगेशन। सबसे इसमें अंदर एक पहला ये लिखा हुआ है बलून ऑक्लूजन टेस्ट। अगर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर का कैरोटिड बॉडी ट्यूमर एंड इनकेसिंग द कैरोटिड इन्वॉल्विंग द कैरोटिड, सो जो है ना आप इसमें बलून ऑक्लूजन टेस्ट करने के बाद आप अगर रिसेक्शन करें तो इसमें स्ट्रोक के चांसेस जो है उसी को अवॉइड करने के लिए। ओके, और कुछ? बेसिकली बलून ऑक्लूजन टेस्ट यू डू कि प्री ऑप इफ यू want to resect that carotid, अगर if it is involving the carotid, अगर कोई malignant mass भी है, कोई benign है जो कि पूरा का पूरा involve कर रहा है, it's not possible कि जी इसको करेंगे तो sacrifice करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो whatever, तो balloon occlusion test कराते हैं। ठीक है, तरीका सबको पता है कि क्या करते हैं, उसमें balloon को occlude कर देते हैं internal carotid में for 10 to 15 minutes and you see the थ्रू एंजियोग्राफी करते हैं सर क्या? yeah, एंजियोग्राफी से हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। ऑक्लूजन 10-15 मिनट्स के बाद क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया जाता है कि जो परफ्यूजन है, सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो कैसी है, उसको कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस तो नहीं आना शुरू हो गए। न्यूरोलॉजिकल साइन आ रहे हैं तो उसको जैसे अगर कोई आता है तो आप अबेंडन करते हैं प्रोसीजर। सर इसमें हम कॉमन कैरोटिड को करेंगे या इंटरनल कैरोटिड को करेंगे? बेसिकली तो इंटरनल कैरोटिड को करना है ना आपने, एक्सटर्नल का तो कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, बेसिकली तो इंटरनल। और उसी के साथ अभी जो एक दूसरी एडवांस है वो जिनॉन इन्हेंसमेंट सीटी स्कैन। ये क्या करता है, जिनॉन गैस को इनहेल करते हैं और ये सेरिब्रल परफ्यूजन को डिटेक्ट करता है। तो ऑक्लूजन के बाद आप सेरिब्रल परफ्यूजन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप रिसेंट एडवांसेस के अंदर जो आखिर में पूछता है तो उसके अंदर बता सकते हैं। फिर अगर ये पैरागैंग्लियोमा है और सिक्रेटिंग पैरागैंग्लियोमा है तो फिर उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ठीक है, 24 आवर जो है यूरिन कैटेकोलामाइंस या विनाइल मेंडेलिक एसिड्स की एस्टिमेशन करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आती है फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस द जना फियोक्रोमोसाइटोमा को एड्रेस करो। तो फियोक्रोमोसाइटोमा अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर एड्रिनल ग्लैंड का सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। प्लस फिर ये दो न्यू एंड न्यूक्लियर टेस्ट हैं, MIBG और ऑक्यूटाइड स्कैन। ये क्या है, ये अगेन न्यूक्लियर स्कैनिंग करते हैं फॉर पैरागैंग्लियोमा। जो MIBG है जो मिथाइल आयोडोफॉर्म बेंजाइल ग्वेनेडिन, ये क्या है कि ये टेकअप करता है, ये जो ट्यूमर है ना ये टेकअप करता है रेडियो न्यूक्लियोटाइड को। तो वो ऐसे एक तो वहाँ पे जो आपका लोकल है वो आपको पता कंफर्म भी कर देगा कि हाँ भाई ये सिक्रेटिंग वो है, और दूसरा बॉडी में अगर ये मल्टीपल हैं तो वो भी बता देता है। इसी तरह से ऑक्यूटाइड स्कैन एक आजकल न्यू है, या हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर बाइंडर पे जाके करता है, और ये अगेन इसको यू कैन आइडेंटिफाई कि जी कहाँ कहाँ इसकी अपटेक हो रही है। देन कम्स द मैनेजमेंट। अब आपने इन्वेस्टिगेशन सारी करा ली, वो इन्वेस्टिगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट प्रिपेयर हुआ होता है तो वो आपको एग्जामिनर जो है सीटी स्कैन है, MRI है, बायोप्सी, FNSC रिपोर्ट, वो वट एवर जो भी वो सारी दे देता है। अब नाउ यू हैव अ कंप्लीट डायग्नोसिस। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा जी नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, मैनेजमेंट। ठीक है, तो बुकिश बातें देखें इसके अंदर नहीं करनी, ऑलवेज रिमेन टू द केस। के हिस्ट्री आपने ले ली, एग्जामिनेशन आपने पूरा किया हुआ है, पूरी पिक्चर आपके माइंड में, इन्वेस्टिगेशन जो आपने कही वो उसने आपको दे दी, सारी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स भी पता चल गई ना। अब आए बाएं शायद नहीं करनी कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कि बुक में ये चीज़ है, ये नहीं है। जो अब इस पेशेंट पे आपने करनी है वो आपने बताना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में बहुत मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा। मेडिकल मैनेज या नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट कोई है
एज आई मैंशनड मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैराफेरेंजियल स्पेस हैं, बिनाइन ट्यूमर्स हैं, द मेन ट्रीटमेंट इज द एक्सिशन, सर्जिकल एक्सिशन है, ठीक है। मेडिकल का कोई ऑप्शन बिनाइन में तो कुछ नहीं है, हाँ कुछ केसेस में है, हो सकता है, लाइक कि व्हेन द पेशेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ द कोमॉर्बिड, है ही नहीं, पेशेंट फिट ही नहीं है सर्जरी के लिए, फिर क्या करोगे, ठीक है, फिर जो भी आप डिपेंड होता है कर सकते हैं। या मैलिग्नेंट लीजन है, अनरिसेक्टेबल है, तब भी डेफिनेटली सर्जरी विल नॉट डू सर्जरी। या वेरी स्लो ग्रोइंग न्यूरोवेस्कुलर ट्यूमर है, कोई श्वानोमा है मिसाल के तौर पे, या न्यूरोफाइब्रोमा है, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल साइन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट ओल्ड एज है, और यू नो ऑल आर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स, तो फिर उसको छोड़ दें, अभी कुछ भी ना करें, इसलिए कि उसको करने के नुकसान ज़्यादा हैं कंपेयर टू ना करने के नुकसान, ठीक है। तो यू ऑलवेज वेट के नुकसान फायदा किस में है। फिर डेफिनेटली लिम्फोकार्मिन ट्रीटमेंट है, तो इट्स अगेन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो भी कीमो रेडिएशन करनी है अपने जो उसके लिम्फोमा के स्टेजिंग के हिसाब से, तो सिर्फ नॉन सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट चंद केसेस में हो सकती है, अदरवाइज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मोस्ट केसेस इज सर्जरी। और चॉइस ऑफ सर्जिकल अप्रोच कैसे डिसाइड करेंगे, अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि जी साइज क्या है ट्यूमर का, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रिलेशनशिप क्या है, और सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी कितना है, ठीक है। तो मोस्टली बिनाइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं, ग्रेट वेसल से उसका कोई वो नहीं ज़्यादा नहीं है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जरी। सर्जरी में फिर अब वो आपसे नेक्स्ट सवाल, चले उससे पहले ये आ जाए प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ये तो वो सारी प्रिपरेशन है जो अब हर पेशेंट में करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन रिलेटेड विद द पैराफेरेंजियल स्पेस ट्यूमर कुछ आपने करनी है। यस, सबसे पहले तो प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट है, जो कि वैसे तो आपने हर सर्जरी में करनी है, लेकिन इसके अंदर अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ ग्रेट नर्व इंजरी है और वेस्कुलर इंजरी, दोनों इसके हवाले से तो खास तौर पे पेशेंट को की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑन बोर्ड वेस्कुलर सर्जन होना चाहिए, फेशियोमैक्सी सर्जन होना चाहिए, और न्यूरो सर्जन आपके ऑन बोर्ड होना चाहिए। फिर गैस्ट्रोस्टोमी है, क्रेनियल नर्व आर एक्सपेक्टेड, या आप कोई न्यूरल ट्यूमर है जिस पे बाद आप कर रहे हैं तो ज़्यादा डेफिनेटली डिस्फेजिया होगा, और इसलिए ट्रिकोस्टमी ख़ास तौर पे अगर फर्स्ट करो कोई अप्रोच बड़ा ट्यूमर है, ट्रांसमैंडिबुलर अप्रोच के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली यू नीड इंट्यूबेशन। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी है या और कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ट्रिकोस्टमी यूनिट, ट्रिस्मस उसको है। रोल ऑफ प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन वैस्कुलर ट्यूमर में एक तो है, ठीक है, और कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में है। मोस्टली तो एज सच कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में नहीं होता, बिकॉज कि इसकी अलग से कोई फीडिंग वेसल एज सच होती नहीं है, ये डायरेक्टली कैरोटिड से डायरेक्टली इसकी सप्लाई होती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जी इसकी एम्बोलाइजेशन कराएं, ठीक है। इसी तरह से जो वैस्कुलर न्यूरल ओरिजिन ट्यूमर्स हैं, दीज आर मोस्टली एवैस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं, इसके अंदर भी कोई रोल नहीं है प्योर। तो मेनली तो वैस्कुलर ट्यूमर अगर कोई है तो उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट है, और वो वैसे कम है। अच्छा, प्रिपरेशन फॉर फंक्शनिंग पैरागैंग्लियोमा, अगर आपका पैरागैंग्लियोमा है और सिक्रेटिंग पैरागैंग्लियोमा है, ठीक है, हिस्ट्री भी है, तो इसके लिए भी आपने कोई प्रिपरेशन करनी है।
हाइपरटेंशन कंट्रोल करना। हाइपरटेंशन आपने डेफिनेटली कंट्रोल करना है, उसको प्री ऑपरेटिवली जो बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो देना है, ठीक है। प्लस पेशेंट की काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में जब ये ख़ास तौर पे जब इसकी हैंडलिंग होती है ट्यूमर की, तो डेट सीक्रेट्स कैटेकोलामाइन, तो एक क्राइसिस के अंदर जा सकता है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए पहले से प्रिपेयर आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट सवाल, जब आपने ट्रीटमेंट बता दी कि जी मैं इसको सर्जरी करूंगा, तो अब वो आपके पास नेक्स्ट सवाल आएगा कि जी अब क्या करोगे। तो इसमें प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट तो हमने कर ली, अब वो फिर ऑपरेटिव स्टेप्स पूछ सकता है, फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द है, और फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट मैनेजमेंट है। जब कैटेकोलमी एकदम से खत्म हो जाएंगे, जैसे पैरागेंजियोमा अगर निकल जाएगा, तो उसको बाद में कुछ बॉडी में इशू होगा पेशेंट को? नहीं, जो अब जो बस उसको आपने उसकी मॉनिटरिंग जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और वो जो हाँ, और डेफिनेटली जब आप निकाल दोगे तो डेफिनेटली जो आपने बीटा ब्लॉकर्स और जो अल्फा ब्लॉकर्स दिए हुए वो आपने स्टॉप करने हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिव स्टेप्स, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अब सर्जिकल अप्रोचेस, वो आपसे पूछेगा जी अब आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, क्या करोगे, ठीक है। तो यू हैव द ऑप्शन अगेन, जो मेन एंड मोस्ट ऑफ द केसेस है, इट्स द ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच, ठीक है, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है। फिर दूसरी अप्रोच इज ट्रांस ओरल अप्रोच है, फिर ट्रांस सर्वाइकल ट्रांस पैरोटिड भी हो सकता है, फिर ट्रांस मैंडिबुलर है, और फिर ये अगर कुछ अप्रोचेस हैं जो इंफ्राटेम्पोरल, लेटरल बेस स्कल, ये जो न्यूरोसर्जन्स करते हैं, खासतौर पे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो स्कल बेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं या जुगुलर फोरामेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या वहाँ से इंट्राक्रेनियल है, तो ये ऊपर से भी अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी अप्रोच के नाम आपको पता होने चाहिए कि भाई ये अप्रोच है जो कि आप न्यूरोसर्जन के साथ मिलके कर सकते हैं। ट्रांसओरल अप्रोच कब करेंगे? जब मेनली या तो अगर इंडिपेंडेंटली आपने ट्रांसओरल कर रही है तो सिर्फ उन केसेस में जो कि ओरोफेंजियल मास के तौर पे कर रहा है, जो नेक में मास नहीं है, ठीक है, जो यूजुअली तो माइनर सिलेब्री ग्लैंड ट्यूमर्स होते हैं जो कि बिल्कुल वॉल्स के साथ ही लगे हुए होते हैं, ठीक है। या फिर ट्रांसओरल का दूसरा है कि कंबाइंड अप्रोच, जब आपने ट्रांस सर्वाइकल प्लस ट्रांसओरल, अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है कि एक तरफ से नहीं आ रहा, तो आपने दोनों तरफ से उसको अप्रोच करके यू कैन ऑल्सो डू। रिस्क क्या है? एक तो लिमिटेड एक्सपोजर है, फिर इनविजिबिलिटी है, रिस्क ऑफ क्रेनियल नर्व इंजरी है, ट्यूमर रप्चर इसके अंदर कॉमन है। फायदा क्या है? नेक मास नहीं, नेक स्कार नहीं है, शॉर्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, और नाउ डेज ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी की वजह से क्या फायदा होता है कि आपका विजिबिलिटी भी बढ़ गई है, इसमें डेक्स्ट्रिटी भी बढ़ गई है, ठीक है, प्रिसिशन बढ़ गई है। तो ये खासतौर पे जो ओरोफेंजियल मास है तो उसके अंदर फिर रोबोटिक सर्जरी में डेफिनेटली ये इट्स द प्रेफर्ड चॉइस, ठीक है। सर रोबोटिक सर्जरी का इसके साइज के ऊपर कोई कंट्राइंडिकेशन है ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं। ट्रांस सर्वाइकल, you know, it's the preferred approach in most cases, but और इसका फायदा क्या है? It can be combined with other और extension can be made, ठीक है, depending upon the case। डीप लोब ऑफ द पेरोटिड में है तो फिर ये ट्रांस पेरोटिड यानी पेरोटिडेक्टमी पहले करें, उसके बाद डीप लोब निकाल लें, ये भी एक अप्रोच है। या अगर खाली ट्रांस सर्वाइकल से वो डीप लोब को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी दैट इज पॉसिबल। अगेन डिपेंड्स के जब बताया ना कि साइज ऑफ द ट्यूमर क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर ये ट्रांसमैंडिबुलर के साथ भी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमैंडिबुलर के अंदर भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कुछ लोग वर्टिकल करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। मेन उसके अंदर फेशियोमैक्सी सर्जन्स को यू कैन इन्वॉल्व द फेशियोमैक्सी सर्जन, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम क्या होता है इसके अंदर, जो आपने बचाना होता है वो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व
को बचाना है, तो वो इंसिशन जो भी आपने देना है वो इस तरह से देना है कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बचनी चाहिए। अच्छा जी, फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी। अगेन इतनी चुके स्ट्रक्चर हैं, इतने डिफरेंट वेरीड स्ट्रक्चर हैं, इट अगेन वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जितनी कॉम्प्लिकेशन पैराफेंजियल में है शायद दूसरी जगहों पे नहीं है इतनी, ठीक है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, एक्सटेंट एंड अप्रोच है, जिसके अंदर ग्रेट वेसल्स इंजरी है, लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स की इंजरी है, फेशियल नर्व की इंजरी है, सिंपैथेटिक चेन की इंजरी है, फर्स्ट बाइट सिंड्रोम। ये क्या होता है? आफ्टर सर्जरी जब पेशेंट फर्स्ट बाइट लेते हैं तो एक्सक्रूशनिंग पेन होता है। जब हम सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर को रिमूव करते हैं तो अगर क्यों पेन होता है? सर बिकॉज टीएम जॉइंट डिसफंक्शन हो जाती है। नहीं सर, हंगर पैंग्स के वो जो फूड को देख के वो जो सलाइवेशन इंक्रीज होती है सिंपैथेटिक चेन की वजह से, वो ग्लैंड तो होता नहीं प्रोड्यूस करने के लिए, इस वजह से हाइपर सेंसिटिविटी टू, वो क्यों क्यों हो जाती है? यही तो सवाल है। हाँ, बिकॉज ऑफ डैमेज टू द सिंपैथेटिक चेन, बैलेंस आउट हो जाता है। सिंपैथेटिक चेन अगर आपने डैमेज किए तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ओवर एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक टू द पैरोटिड। पैरोटिड तो अभी आपने रिमूव नहीं किया हुआ है ना, ठीक है। तो जब वो पैरोटिड ग्लैंड की ओवर स्टिमुलेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत एक्सेसिव होती है एंड दैट कॉजेज द पेन, और फिर सब्सिक्वेंट जब वो खाना शुरू करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीव हो। दैट इज द फर्स्ट बाइट सिंड्रोम। क्या कर सकते हैं इसके लिए? रीएश्योरेंस है एक तो, दूसरे के वक्त के साथ ये खुद ही इंप्रूव हो जाता है। फिर बोटुलिनम जो कि हम वो फेस सिंड्रोम में भी देते हैं, फेस सिंड्रोम के अंदर वही इंजेक्ट कर सकते हैं पैरोटिड में बोटुलिनम टॉक्सिन। लिंगुअल नर्व की इंजरी है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसफंक्शन है, सीएसएफ लीक भी खासतौर पे उनके अंदर जो बेस ऑफ स्कल के अंदर है, जुगुलर फोरामन के थ्रू वहाँ पे जा रहा है, वहाँ तक रीच कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आपने मैनिपुलेशन किए तो ये वहाँ पे भी हो सकता है। फिर डेफिनेटली अगर वो कोई इसकी हो गई है तो वो इसकी मैनेजमेंट के हिसाब से आपसे सवाल पूछ सकता है कि जी अब ये हो गया तो अब क्या करोगे, ठीक है। वो इंडिविजुअल एक चीज की। फिर प्रोग्नोसिस एंड काउंसलिंग नेक्स्ट स्टेप होता है। ये भी आपसे सवाल पूछेगा जी आप इसको पेशेंट का तो प्रोग्नोसिस बताएं कि इसका कंडीशन की क्या है, और प्लस पेशेंट को आपने काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रोग्नोसिस। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपने बताना है, करके दिखाना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपने बतानी है कि अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, एक्सटेंट एंड पेशेंट कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसमें रिकरेंस नहीं होती है, ठीक है, 0 to 9% है। पैरागैंग्लियोमा में 5% है, मैलिग्नेंट में रिकरेंस हो सकती है। फिर अगर मैलिग्नेंट या कुछ और ट्यूमर है तो फिर आपने पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी के बारे में भी पेशेंट को बताना होगा, ठीक है। रिसेंट एडवांसेस, फिर नेक्स्ट सवाल ये आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि जी इस फील्ड के अंदर कोई रिसेंट एडवांसमेंट है तो बताएं। आपने कोई जर्नल पढ़ा है, कोई आर्टिकल पढ़ा है जो भी रिसेंट आपके नज़र से गुजरा हो, तो वट एवर तो आप बताएं। कुछ हो सकती है जैसे पैरागैंग्लियोमा में जेनेटिक स्क्रीनिंग हो रही है, इस पर भी बड़े आर्टिकल्स आए हुए हैं, ठीक है। पीजीएल जीन्स जो हैं वो ऑन क्रोमोसोम 11 ये हो रही है। फिर ये ट्रांस ओरल और अदर रोबोटिक सर्जरी, इवन ट्रांस सर्वाइकल के लिए रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली उस पर एज है जो कन्वेंशनल सर्जरी पे। फिर ये अभी हमने डिस्कस किया था जिनॉन एनहांस सीटी स्कैन, ये सेरेब्रल फ्लो को मेजर करने के लिए। फिर ये न्यूक्लियर स्कैनिंग के जो 2 टेस्ट बताए थे, MIBG और
ऑक्यूटाइड स्कैन जो था वो हो सकता है फॉर पैरागैंग्लियोमा। और अगर कोई आपने रिसेंट पढ़ा है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ रिसेंट आर्टिकल्स में एंड में बताऊंगा, वो ज़रूर पढ़ लें और ताकि ओवरऑल मैनेजमेंट पे पता चल जाए। चलें अब टोक्स पे आ जाएं। टोक्स पे ये तो लॉन्ग केस तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये रिसेंट एडवांसेस पे आपका हो गया, वो आपको थैंक यू बोल देगा एंड में, बेल भी बच जाएगी तब तक, ठीक है। ओके, अब कुछ शॉर्ट केस, तो डेफिनेटली शॉर्टेड केस में भी यही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शॉर्टेड टाइम होता है तो यही सारी चीज़ें आपने आनी चाहिए, आप डिटेल में कर चुके हैं इसमें। अब आ जाए टोक्स पे। कुछ ये पिक्चर अगर आ गई आपके पास टोक्स में, ठीक है। चलें, सबसे पहला सवाल क्या होता है इसके अंदर, यूजुअली क्या होता है कि डिस्क्राइब योर फाइंडिंग्स। कौन करेगा? दो पिक्चर्स हैं ना इसमें, अब दोनों की अलग अलग आपने डिस्क्राइब करनी है कि जी। middle age male patient sitting on the examination stool with open mouth that is showing the oropharynx of the patient. Oropharynx examination shows a bulge on the left side of the oropharynx. With also neck shows a scar, incision scar marks. ठीक है, यहाँ पे उसने प्रीवियस या तो सर्जरी हुई है या व्हाटएवर बायोप्सी हुई है, और नेक मास है। नेक मास की लोकेशन आपको स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के एंटीरियरली अपर नेक के अंदर है, ठीक है। या ये ठीक है, यूवुलर डेफिनेटली पुश हुआ है जो टॉन्सिल। ओके, कंजस्टेड भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा रेड कंपेयर टू ये जो अगर आप पैलेट से कंपेयर करें तो, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल तो यही है कि ये फाइंडिंग। फिर नेक्स्ट सवाल अगेन उसके अंदर होगा, व्हाट इज़ योर लाइकली डायग्नोसिस? पैराफेंजल स्पेस ट्यूमर। अब कुछ भी हो सकता है पैराफेंजल, वो तो अब आपको बाद में पता चलेगा। तो ये तो इसमें ये पिक्चर देख के तो आपने सिर्फ यही पता चल सकता है कि जी पैराफेंजल स्पेस ट्यूमर है, ठीक है। अब वो आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस नेक्स्ट सवाल पूछ सकता है, व्हाट कुड बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? इसमें इंप्रेशन हम ये भी ले सकते हैं ना कि पहले सर्जरी हुई है सर्वाइकल अप्रोच से डिफरेंस हुई कम्युनिकेशन मे बी। अब ये अगर जब तक आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो यू कैन नॉट से कि ये सिर्फ सर्जरी हुई है या सिर्फ बायोप्सी के लिए इसको ओपन किया गया है, क्या हुआ है सर्जरी, ठीक है। ठीक है, रिकरेंस तो फिर डेफिनेटली रिकरेंस का वर्ड तो आप उस वक्त यूज करते जब प्रॉपर सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद रिकरेंस हुई है। अब ये प्रॉपर सर्जरी डेफिनेटली इस केस को देखते हुए तो यही लग रहा है कि प्रॉपर सर्जरी हुई नहीं है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा वो? डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका आप बता देंगे वही सारे अभी जो हम कह के भाई ये पॉसिबिलिटी है, मोस्ट लाइकली जो इसकी प्रेजेंटेशन है इसके हिसाब से क्या लग रहा है? बिनाइन लग रहा है, स्लेविक ग्लैंड ट्यूमर ही लग रहा है, ठीक है। ओके, पैरोटिड वैसे क्लियर है ऊपर। ये मेरा ख्याल ऐसे आर्टिफैक्ट है कोई, हाँ लाइट की, हाँ मे भी कुछ हो सकता है, व्हाटएवर, ये कुछ है नहीं वैसे। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा वो? व्हाट इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड इन दिस पेशेंट? वही सारी चीज़ें जो आपने डिटेल में भी बताई, इन्वेस्टिगेशन की बता दी। फिर आपसे वो पूछेगा हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, ठीक है। तो सर्जिकल अप्रोचेज हैं तो जो वो आपसे पूछ या तो पूछ लेगा कौन कौन से अप्रोचेज हो सकते हैं, नाम। यस बिल्कुल कर सकते हैं इसके अंदर ट्रांसओरल, और इवन अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये भी एफएनसी नेक से भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डेफिनेटली ट्रांस सर्वाइकल। इसमें जब ये ना होता तो फिर तो आपके वो कहेंगे अब ये है तो फिर डेफिनेटली ये दिस इज बेटर, ठीक है।
फिर आपसे वो कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकता है सर्जरी की, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ये यही सवालात इन स्ट्रोक्स के अंदर इस पिक्चर के हवाले से आ सकते हैं। ठीक है, चलें, ये सवाल अगर ये एक पिक्चर आ जाती है, ये सारा भी आ सकता है और हो सकता है कि सिर्फ एक ही आ जाए, कोई एक या आ जाए या दो आ जाए या डिफरेंट सेक्शन के अंदर आ जाए। जैसे यही पेशेंट है सजिटल कोरोनल में भी है, सजिटल में भी है, तो ये एक एक तीनों से आ जाए। ठीक है, कुछ भी आ सकती है, व्हाटएवर। तो क्या सवाल होंगे इसमें? अगेन पहला सवाल तो वही है कि डिस्क्राइब योर फाइंडिंग्स। ठीक है, अब एक्सप्लेन करें, कैसे करेंगे? उसी तरह से आपने पूरा करना है कि दिस इज द सीटी स्कैन। ठीक है, हाँ, एक्सियल व्यू ऑफ सीटी स्कैन है। ठीक है, विद कंट्रास्ट है या विदाउट कंट्रास्ट है, वो लिखा हुआ होगा। अगर इसमें लिखा हुआ कि नजर नहीं आ रहा तो यू डेफिनेटली सिर्फ देख के तो पता नहीं चलेगा कि विद इनहेंसमेंट अगर आ रही है तो वो कल बता देंगे विद कंट्रास्ट है। फिर फाइंडिंग्स बताएं अब। वन बाय वन, हाँ चलो, सबको प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिकली यही प्रैक्टिस है कि आप एग्जाम में जब बोलते नहीं है ना, तो फिर एग्जाम में बोलना मुश्किल हो जाता है, लिखना मुश्किल हो जाता है। सिटी स्कैन ऑफ अ पेशेंट, फिर हम नेम बता देंगे जो भी टेकन ऑन दिस डेट एंड इट्स शोइंग एक्सियल कट्स एंड विद कॉन्ट्रास्ट देयर इज अ हेटेरोजेनस mass occupying the left side of the oropharynx and it is extending anteriorly from the mandible to posteriorly up to the prevertebral fascia, laterally to the pharynx, medially to the pharynx and laterally to the medial pterygoid muscle, and it is extending inferiorly up to the level of the thyroid cartilage. ठीक है, ओके, गुड। और क्या बताएंगे इसमें? It is displaying of vessel. हाँ, So it is displacing the great vessels in the posterior laterally. Laterally displaced doesn't mean it's in the posterior compartment. displacement of vessels. ठीक है, Splitting है इसमें. ठीक है, ओके, गुड। और Lumen is obstructed. ल्यूमन ओरोफेंजल भी है। ठीक है, और इट लुक्स लाइक बिनाइन और मैलिग्नेंट? बिनाइन, क्योंकि जो इसका फैट प्लेन है पूरा इरोजन कोई नहीं है, फैट प्लेन वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, तो बिनाइन ट्यूमर्स है। नेक्स्ट सवाल, अब फाइंडिंग हो गई। इस नेक्स्ट सवाल अगेन वही आ जाएगा जी, व्हाट इज योर लाइकली डायग्नोसिस? अगेन पहले तो वही लिखेंगे जी, पैराफेंजियल स्पेस ट्यूमर है। ठीक है, अब इस पे कोई और दूसरा के बिनाइन, इट लुक्स लाइक बिनाइन। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें क्या आप बता सकते हैं? homogeneity or saltpeper appearance. So ये post heterogeneous compartment में तो most likely और benign है, तो ये जो ना वेगल schwannoma ही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो great vessels हैं वो तो push किए हैं literally. ओके, This means that it is a post-styloid compartment tumor. ठीक है, और जो ना nature माइनस लेवल ग्लैंड से नहीं हो सकता? can be हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि श्वेनोमा इतने बड़े नहीं होते। ठीक है, श्वेनोमा बड़े लोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए कि वो स्लोली ग्रोइंग भी होते हैं, प्लस बहुत अर्ली आपको न्यूरल जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, न्यूरल डेफिसिट आना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये स्लेवरी ग्लैंड ट्यूमर ही है, जो कि माइनर स्लेवरी ग्लैंड से भी आ सकता है, और पैरोटिड से, पैरोटिड का ऐसा तो अलग ही लग रहा है, लेकिन मे भी हो जो कि इसमें विजिबल इतना नहीं है, या फिर एक्टोपिक सिलेवरी लेस से भी जो वहाँ से आ सकता है। इसकी जो heterogeneous density आ रही है वो कुछ सजेस्ट कर रही है कि epidemiorphic हो सकता है। आप बताओ। Yes sir, lobulated है। मोस्ट लाइकली तो ये प्रोमॉर्फिक ही है। ठीक है, और हिट्रोजेनस डेफिनेटली हिट्रोजेनस है। सर इसमें एक चीज़, वो जो सर आप पहले बता
वो सीटी स्कैन में देखो वो एक अगेन जो फैट का पैड है वो ज़्यादा इज मोर विजिबल ऑन MRI, ठीक है। तो सर इसका MRI और ये चूंकि इतना बड़ा ट्यूमर है तो इस बड़े ट्यूमर में ये फैट प्लेन और ये सारी डिस्टिंक्शन जो है लॉस हो जाती है। वो बेसिकली वेसल्स को सर पुश कर रहा है ना, वेसल्स तो डेफिनेटली वेसल्स को पुश कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये पोस्ट स्टेरॉइड से ही आया है, ठीक है। ओके, ये वही सेम पेशेंट है, कोरोनल व्यू है, सैजिटल व्यू के अंदर वही चीज है। ये पेशेंट अगर आ जाए, क्या पहला वही आएगा, डिस्क्राइब योर फाइंडिंग्स। पहले तो फाइंडिंग्स बताएं। हाँ, वहीं से शुरू करें, पहले ओरल से शुरू कर दें, बताएं। irregular submucosal wells on left medial side of the oropharynx. on the soft palate. crossing the midline जो है उस blood surface and Uvula is not visible, oropharynx not. and almost ठीक है, पूरा कोई सर्कमस्क्राइब नहीं है, जनरलाइज्ड एक बल्ज है पूरे का पूरा टॉन्सल्स में, इवन टॉन्सल की और कोई डिस्टिंक्शन नहीं बची है, पिलर्स कहीं नजर नहीं आ रहे इसमें, ठीक है। यूवुला भी पूरा या तो उसने ओक्लूड कर दिया है या इन्वॉल्व कर दिया है उसको, ठीक है। ओके, और दूसरी साइड पे आ जाएं, नेक पे पूरी इसकी एक्सटेंड बताएंगे, एंटीरियर कहाँ तक जा रहा है, पुशर कहाँ जा रहा है, अबव कहाँ है, Starting from the lobule till the एकदम जर्बल से भी नीचे। लोअर लेवल क्रिकोइड कार्टिलेज के लेवल पे आ रहा है, एंटीरियर पार्ट ऑलरेडी। हाँ बताइए, ये कह सकते हैं कि रीचिंग अप टू द लोअर नेक ऑलमोस्ट, ठीक है। इवन कवरिंग द ये जगह ना मेस्टॉइड, तो अगर यहाँ पे तो मेस्टॉइड के भी पीछे तक जा रहा है, ये इसका मतलब है कि उसने उसको भी ऑक्सीपिटल रीजन तक, बिल्कुल जहाँ पे यहाँ तक विजिबल है, बिल्कुल ऑक्सीपिटल रीजन तक। मे बी अगेन ये देखें कि इसके एक वो भी है मार्क, इंसिशन भी होगा जो कि इस पे स्टिचेस भी लगे हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है। पस है जो कि, ठीक है, प्लस साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। नाउ लाइकली डायग्नोसिस, बच्चा है, ठीक है। तो एनी ट्यूमर है लेकिन विथ सुपर एडिट अब पैराफेंजल एब्सिस भी बन गया है। हो सकता है कि ये जब ये इसको जो भी इसके प्रोसीजर हुआ है, या तो बायोप्सी हुई है या इसको जो भी है वो उसको करने की कोशिश की है, उसके बाद ये एब्सिस बना है, तो ट्यूमर है। तो उसी लाइन पे साफ दे, असल चीज सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपने इसकी पिक्चर का, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो डिस्क्राइब करना है, फिर बाकी की चीजें तो सारे सवालात वही सेम ही होते हैं, ठीक है। ओके, चलें, ये एक सीटी स्कैन बहुत थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अगेन ये ट्यूमर है पैराफेंजल पे, आपने इसकी वो सब बता देनी है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये वेसल पे, हाँ वेसल के साथ मतलब है कि इसका रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ठीक है। तो इट कुड बी कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है, ठीक है, गुड। तो अगर ये फिर कैरोटिड बॉडी ट्यूमर का डायग्नोसिस हो जाएगा तो फिर आपकी वही फिर मैनेजमेंट पूछेगा कि जी इसको क्या करना है, आपने ट्रीट बायोप्सी नहीं करेंगे, ठीक है, बायोप्सी की जरूरत नहीं है इसमें। फिर वो आपसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूछता है तो फिर इसमें एंजियोग्राफी आप कर सकते हैं ताकि कैरोटिड वेसल्स की रिलेशन और वो सब चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, चलें, ये उसी पेशेंट की ये अगर आ गया
हाँ, लायर साइन जो 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 है ना, ये लायर साइन जो है वो इसके अंदर विजिबल है। तो अगेन वही, इसकी पहले तो आपने वो फाइंडिंग्स बता देगा कि जी डिस्क्राइब योर फाइंडिंग कि क्या है ये, एंजियोग्राफी हुई हुई है और फाइंडिंग्स क्या है इसके अंदर, और फिर डायग्नोसिस पूछ लेंगे और फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन, फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे या मैनेजमेंट उसकी क्या होगी, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये सारे सवाल इसमें इस टॉक्स में हो सकते हैं। वही पेशेंट है, ये सर्जरी की हो गई है, तो ये अटैचमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे तो ये पिक्चर आ भी सकती है, अगर ये इसी तरह से आ जाए कि भी क्या शो कर रहा है, तो आपने सारी चीज़ें फाइंडिंग्स बता दी हैं। लाइकली डायग्नोसिस में यही बता देंगे कि जी कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है। फिर उसकी वो बाकी तो थ्योरेटिकल सवाल हैं, वो सारे वही सिमिलर होंगे। ये क्या है? दिस इज द MRI। ठीक है, MRI क्या है? ठीक है, वही जो अभी हमने पिछला जो केस है वो सिटी स्कैन था, ये MRI, ये सिमिलर फाइंडिंग्स हैं, उसी तरह की है। वही बिनाइन अपीयर हो रहा है, ये पूरा जो इसका फैट प्लेन है ये प्रिजर्व हुआ है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, ओरोफेंजियल भी ग्रोथ है, पैराफिन में भी है। ठीक है, और इस कट्स के अंदर आपको ग्रेट वेसल्स के बारे में नज़र आ रहे हैं, पीछे पुश हुए हुए हैं। ठीक है, तो यही सिमिलर टाइप का केस है, पोस्टिस्टुलॉइड से अराइज हुआ है। लाइकली डायग्नोसिस सिलेवरी ग्लैंड ही, मोस्ट प्रोबेबली तो सिलेवरी ग्लैंड है। बिनाइन लग रहा है तो या प्रीस्टुलॉइड से। ठीक है, चलें, आई थिंक टाइम भी हो गया, और ये 2-3 आर्टिकल्स हैं, ये अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ लें फर्दर रीडिंग के लिए। ठीक है, so that's all for parapharyngeal tumor. Any questions? सर डिफिकल्ट टॉपिक है। हाँ, any questions? नो क्वेश्चंस, या तो नो क्वेश्चन का मतलब या तो सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया, दो ही ऑप्शन होते हैं। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे इसकी एग्जामिनेशन के लिए हार्ट मर्मर दर्द ये सब सुनना इम्पोर्टेंट होगा? हार्ट बिल्कुल, देखिए एग्जामिनेशन लॉन्ग केस के अंदर तो आपने सब करना ही होता है ना। कौन कैसे हैं भाई? समय खैरियत से? ठीक ठाक। ठीक है, तो लॉन्ग केस में तो आपने करना ही होता है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकबाल। और बस ये हमारा छोटा सा इसको वो लगा दी तरफ सही हो ठीक है, हो गया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हमने बड़ा चैलेंज किया था, इसको वो टॉपिक दे दिया जो कोई यही नहीं मैं नहीं पीऊँगा आप तो नहीं रोज़ा नहीं, चाय में जाते काफ़ी लोग तो हाँ काफ़ी लोग